Good morning, students. Students, today we have started the new topic, that is the RNA structure, genetic code, and the translation. So first, it is a translation. So translation is the process by conversion of the synthesis of the protein by the RNA. Translation means the translation. आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन. चेंज फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज टू द अमाइनो एसिड लैंग्वेज. चेंज फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज टू द अमाइनो एसिड लैंग्वेज. ठीक है. सो अमाइनो एसिड जो न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज, अमाइनो आरएनए, it is a nucleotide, and protein, it is formed in the form of amino acid. This is the building block of the amino acid. So change of the nucleotide language to the amino acid language. On the ribosome, this process occurs on the ribosome. 5' of the mRNA become amino terminals of the protein. The translation depends on the genetic code. This translation, the process होती है, it will be depend on the genetic code. जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इट इज अ ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स रीड इन द ट्रिपलेट. तो न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड करते हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं? कोडॉन्स. न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. दिस 4 न्यूक्लियोटाइड्स we read it in the triplet form. जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन. It is readable in the triplet form, so it is called as a codon. Into 5' 3' 5' 3' direction. Each codon translates to an amino acid. हर एक कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है, तो each codon translate to an amino acid. So at least 64 possible codons are confirmed. For third position and fourth possibilities makes 43 or 64, like that. So 64 possibilities are we have found. There is the second, there is the first position, there is the sequence is the UCAG. Uracil, cytosine, adenine and guanine. Uracil, cytosine, adenine and guanine. It is the second position. Third position is again uracil, cytosine, adenine and guanine. So जो sequence क्या होगा? UCAG and UCAG. इस तरह से जो है 64 codons we have found. 64 codons. UUC, in this there is the phenylalanine जो है, इसको कोड करता है ये. ल्यूसिन, UA कोड्स द ल्यूसिन, UA and UUG. It has a five codons. ल्यूसिन जो है 1 2 3 4 5 6 कोडॉन को ये कोड करता है. यूज ऑफ द जेनेटिक कोड टेबल टू ट्रांसलेट द कोडॉन. यूज द जेनेटिक कोड टेबल टू ट्रांसलेट द कोडॉन AUG. This is the A. First, these 4 rows shows the 16 amino acid whose codon begins 5' with the A. Okay, this row. amino acid whose codons begins with the A. A से जो शुरुआत होती है, यहाँ देख लीजिए, A से शुरुआत होती है. 64 codons, sorry 16 codon. Second is this column shows the 16 amino acids whose codon have the middle with base U. इसमें मिडिल में बेस U होता है. ये होता है 16. दिस रो में पूरा A से शुरू होता है, फिर ये जो मिडिल में U होता है ना, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. 16 जो है वो मिडिल में U होता है. थर्ड नंबर इज दीज 4 1 2 3 4 4 separated rows shows the
16 amino acid whose codon end with the G. These four are shown with the G, and the codon AUG is designated for the methionine only. This is the AUG, A, U, and finally is the G. It is designated for the AUG. So the specific features of the genetic code is there is a triplet codon. Each codon is a ट्रिपलेट फॉर्म, मतलब हर कोडॉन जो है उसमें तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स जो तीन तीन जो बेस होते हैं, तीन तीन बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड प्यूरिन ऑफ पायरिमिडीन के जो बेसेस होते हैं, तीन तीन बेस पेयर्स होते हैं इसमें. Each codon is a consecutive sequences of the continuous sequence of the three base pairs on the mRNA. Non overlapping, एक के ऊपर एक overlap नहीं होते, ये तीन तीन के फॉर्म नहीं होते. They are always read one after another. Okay, तो एक तीन का रीड करेंगे, फिर उसके बाद तीन. नॉन पंचुएटेड कोड्स और ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं ये, कोई भी इसमें कॉमा नहीं होता, रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूअस होते हैं. स्पेसिफिसिटी मतलब अनअम्बिगस होते हैं. द पर्टिकुलर कोडॉन ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड. अनअम्बिगस होते हैं, एक पर्टिकुलर कोडॉन हमेशा जो है वो सभी स्पीशीज में सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेगा. यूनिवर्सल होते हैं, कोडॉन्स रिप्रेजेंट सेम अमीनो एसिड इन द ऑल स्पीशीज एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया. A few codons have the meanings different, जैसे कि UAA codes for the trypsin, जबकि UGA जो है U and G and A. It is a stop codon. It is a UGA. It is a stop codon. And in the mitochondria there is code for the trypsin, and for us there is a stop codon. So UGA, another examples of UGA, it is a termination codon for the nuclear, and for the mitochondria it is a tryptophan, and AGA, that is arginine, it is a termination. AGG, this is the arginine termination. UGA, AUG and UGA, AUG and AGG. There is also a termination codon. AUA, it is isoleucine code for the nuclear and methionine. So although the each codon corresponds to the singlet degenerate होते हैं, मतलब although each codon correspond to the singlet amino acid, and given amino acid may have more than one or triplet codon for it. मतलब degeneration means कि एक जो amino acid है उसके लिए एक से ज्यादा codons हो सकते हैं, जैसे कि arginine, leucine, serine के लिए 6 से ज्यादा जो है इनके पास codon होते हैं जो कि अर्जिनिन को कोड करते हैं, जैसे कि एलेनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड थ्रियोनिन 4 के लिए होते हैं, 4 ऑफ ईच. आइसोल्यूसिन के लिए 3, एस्पार्टेट, ग्लूटाथाइन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लूटाथाइन, इनके लिए 2 कोडॉन्स होते हैं. मिथियोनिन और ट्रिप्सिन के लिए एक ही कोडॉन होता है. तो ये मिथियोनिन, ट्रिप्सिन जो है ये सिंगलेट कोडॉन होते हैं. Initiator codon is AUG and termination codon is UAA, UGA and UAG. UAA, UGA and UAG. So this is all about the genetic code, and next one is a mutation. So mutation. What are the mutation? If the DNA damage caused by the any physical, chemical, and biological agents remaining, it is unrepaired. है ना. म्यूटेशन क्या है कि अगर हम किसी भी वजह से अगर डीएनए में कोई डैमेज हो जाए, या तो फिजिकल कॉज हो उसका, या फिर केमिकल हो, या कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो जो कि डीएनए को डैमेज कर दे, तो उसके बाद अगर वो रिपेयर ना हो पाए तो वो क्या कॉज करता है? इट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन. It leads to the changes in the nucleotide base
एंड इफ बेस इज सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड के बेसिस जो है होते हैं उसमें उसके सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, जो कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं। इफ replicated and transmitted to the further generation become the permanent, अगर वो रेप्लिकेट हो जाता है डीएनए, अगर वैसा की वैसा जो रेप्लिकेट हो जाएगा, अगर म्यूटेंट ही डीएनए जो रेप्लिकेट हो जाएगा तो वो फ्यूचर जो है जनरेशन में वो ट्रांसफर हो जाता है और परमानेंट हो जाता है इस तरह का म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप, पॉइंट म्यूटेशन एंड इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज अगेन ऑफ थ्री टाइप। पहला है सब सिचुएशनल म्यूटेशन, सेकंड इज अ डिलीशन म्यूटेशन एंड थर्ड वन इज अ इंसर्शन म्यूटेशन। सब सिचुएशनल नाम से इनको पता चल रहा है कि उसमें सिचुएशन में चेंज हो रहा है ना। सब सिचुएशनल मतलब जो कोडॉन्स हैं या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं है ना, उसकी जो सिचुएशंस है वो चेंज हो रही है, तो ये इज कॉल्ड एज सब सिचुएशनल म्यूटेशन। डिलीशन मींस का डिलीट हो रहा है ना, कोई भी न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो रहा है या कोई बेस पेयर डिलीट हो रहा है या पूरा की पूरा कोडॉन जो है वो डिलीट हो रहा है, इट इज अ डिलीशन म्यूटेशन। थर्ड वन इज अ इंसर्शन, मतलब कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर जो है ऐड हो रहा है, तो इट इज इंक्लूड इन द इंसर्शन म्यूटेशन। सब सिचुएशनल म्यूटेशन इज अगेन divided into two part. There is a transition mutation and transversion mutation. ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है कि प्यूरिन्स जो है प्यूरिन्स की जगह पे ही प्यूरिन्स आ जाते हैं है ना। एक प्यूरिन की जगह में अगर दूसरा प्यूरिन आ जा रहा है तो इट इज अ ट्रांजिशन म्यूटेशन। मतलब सेम प्यूरिन, एक प्यूरिन या पायरिमिडीन की जगह में दूसरा प्यूरिन या पायरिमिडीन आ जाए तो वो कहलाएगा ट्रांजिशन म्यूटेशन। एंड सेकेंड वन इज अ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इसमें क्या है, अगर प्यूरिन है तो उसकी जगह अगर पायरिमिडीन ऐड हो जाए या फिर अगर पायरिमिडीन है तो प्यूरिन ऐड हो जाए तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। फिर डिलीशन में तीन तरह का डिलीशन म्यूटेशन है। फर्स्ट इज अ जीन डिलीशन, सेकंड वन इज अ कोडॉन डिलीशन एंड थर्ड वन इज अ बेस डिलीशन। नाम से ही हमको पता चल रहा है जीन डिलीशन मतलब कि पूरा का पूरा एक जीन जो कि प्रोटीन को कोड करता है कि पूरा का पूरा जीन ही डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या लाता है, जीन डिलीशन। इसकी वजह से इसका एग्जांपल है दैट इज थैलेसीमिया। जो सेकेंड इज अ कोडॉन डिलीशन। कोडॉन डिलीशन में एक सिंगलेट कोडॉन मतलब ट्रिपलेट कोडॉन, हमको पता है कि तीन बेस पेयर्स का एक कोडॉन है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। इस तरह से ये जो एक कोडॉन, अगर एक कोडॉन पूरा की पूरा डिलीट हो जाए तो ये क्या कहलाता है, कोडॉन डिलीशन। इसका एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है वो इसकी वजह से होती है। फिर बेस की सिंगल एक बेस पेयर जो है वो डिलीट हो गया है तो ये कहलाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कि हमको पता है कि अगर एक फ्रेम अगर हम तीन करके पढ़ रहे हैं और अगर उसमें से हम एक बेस को अलग कर दें तो वो पूरा की पूरा फ्रेम जो है उसका शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि जो उसमें से एक अगर हमने निकाल दिया तो वो फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे की तरफ। मान लीजिए कि ए आ रहा है, तो ए में से अगर हमने लास्ट वाला सी निकल गया तो ए फिर ए आ जाएगा, क्योंकि ए सी इस तरह से ये चल रहा है ना, इस तरह से। फिर थर्ड वन इज इंसर्शन, मतलब इसमें तो ऐड हो रहा है, तो ये भी अगेन थ्री टाइप का होता है, जीन इंसर्शन, कोडॉन इंसर्शन एंड द बेस इंसर्शन। इसमें जीन इंसर्शन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जीन जो है ना, जीन इंसर्शन में पूरा का पूरा जीन जो है वो ऐड हो गया है ना। इसका डक्नी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसके अंदर आता है। फिर कोडॉन इंसर्शन मतलब कि एक नया कोडॉन बीच में आके ऐड हो गया, दैट इज द हंटिंगटन्स कोरा जो है ये इसका एग्जांपल है। फिर बेस इंसर्शन मतलब कि इसमें भी अगेन एक बेस को इंसर्ट कर दिया बीच में, तो वो भी पूरा का पूरा फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन तरह के म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन के टाइप है। अब म्यूटेशन, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, ये एक अलग टाइप है म्यूटेशन का जिसमें इफेक्ट क्या होता है तो उसकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे। फिर म्यूटेशन देयर इज हमने देखा था सब्स्टिट्यूशनल, डिलीशन एंड इंसर्शन, ये तीन टाइप हमने देख लिए। फिर सेकंड वन इज द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। इसके टाइप्स हैं साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, इट इज एक्सेप्टेबल, missense mutation partially acceptable, and third one is a nonsense mutation, and last one is a frame shift mutation. Silent mutation,
साइलेंट म्यूटेशन की अगर म्यूटेशन हो गया है लेकिन उसकी वजह से कोई भी जो आपका जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस में कोई चेंज नहीं हुआ है बट वो म्यूटेशन हो गया है, तो वो कहलाएगा साइलेंट म्यूटेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक बेस जो है वो चेंज हो रहा है, और अगर जो बेस तो चेंज हो गया है लेकिन जिसकी जगह पे जो बेस ऐड हुआ है वहां पे, या फिर फ्रेम चेंज हुआ है या बेस जो भी ऐड हुआ है वहां पे, तो उसकी वजह से जो कोडॉन है वो सेम की सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो प्रोटीन तो सेम बनेगा लेकिन जो म्यूटेशन है वो हो चुका है, तो ये कहलाता है साइलेंट म्यूटेशन। फिर सेकेंड वन इज अ मिससेंस म्यूटेशन, ये एक्सेप्टेबल है ना। कि थर्ड वन इज अ मिससेंस म्यूटेशन, दैट इज अ पार्शियली एक्सेप्टेबल। फिर है अनएक्सेप्टेबल मिससेंस म्यूटेशन। फिर है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब कि आपका जो भी कोडॉन है उसकी जगह पे कोई स्टॉप कोडॉन आ जाए, है ना। तो वो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो वहीं की वहीं ब्लॉक हो जाएगा, तो ये कहलाता है नॉनसेंस म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का हमने पॉइंट म्यूटेशन में भी देखा था कि अगर कोई बेस ऐड या डिलीट हो जाए तो पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नॉनसेंस में भी इफेक्ट ये है कि प्रोटीन जो है अल्टीमेटली जो फॉर्म हो रहा है वो बदल जाएगा, है ना। मिससेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है पर म्यूटेशन हो रहा है। मिससेंस में कि भाई चलो प्रोटीन जो है वो फॉर्म हुआ है लेकिन उसकी वजह से बॉडी में कोई ज्यादा इफेक्ट चेंजेस नहीं हो रहा है, इफेक्ट है, तो ये एक्सेप्टेबल म्यूटेशन है। पार्शियली एक्सेप्टेबल है ये वाला मिससेंस म्यूटेशन, जिसमें कि इफेक्ट तो हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मिससेंस म्यूटेशन अनएक्सेप्टेबल क्यों है कि उसकी वजह से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि भाई म्यूटेशन की वजह से बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। सब सिचुएशनल, सबसे पहला है पॉइंट म्यूटेशन का, फर्स्ट है सब सिचुएशनल म्यूटेशन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। प्यूरिन्स रिप्लेस बाय द प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स रिप्लेस बाय द पायरिमिडीन्स। ट्रांसवर्शन में प्यूरिन्स रिप्लेस बाय द पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन रिप्लेस बाय द प्यूरिन्स। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, है ना, जिसमें कि GAG दैट इज द ग्लूटामिक एसिड, है ना, विच इज रिप्लेस बाय, ये जो है ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है GAG जो है कोडॉन, इट इज कोडॉन जो है GAG की जगह आ जाएगा GUG, जो कि वैलिन को कोड करने लगता है, तो ये कॉज करता है सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो जो यहाँ पे ए है इसकी जगह क्या, दैट इज द एडेनिन, एडेनिन इसकी जगह क्या आ गया है, यूरेसिल। तो मतलब कि जो प्यूरिन्स है उसकी जगह पायरिमिडीन आ गया है, तो दैट इज अ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन में हमने पढ़ा था, है ना, टर्मिनेशन कोडॉन जो था नॉनसेंस म्यूटेशन, तो UAA इट इज अ टर्मिनेशन कोडॉन। इसमें हम तीनों देखेंगे इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन में। पहला है UCA, UCA इट इज अ कोडॉन विच इज कोड द सेरीन, सेरीन अमीनो एसिड कोडॉन यूज द सेरीन। अब ये सेरीन जो है UCA, this is code for the serine, and this serine अब यहाँ पे हमने देखा साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन तो होता है ना, बट एक ही जगह क्या आ गया, यहाँ पे U आ गया है, बट इट इज ऑल्सो कोड फॉर सेरीन। UCA it is a codon which is also code the serine। तो म्यूटेशन तो हुआ बट उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। फिर है मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस में एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, तो जिसमें कि UCA में U की जगह जो है, यूरेसिल की जगह जो है वो क्या आ गया, सिस्टीन, या सॉरी साइटोसिन, दैट इज द CCA, इट इज कोड फॉर द प्रोलीन। तो सेरिन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, प्रोलीन आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मिस नॉनसेंस म्यूटेशन, मतलब कि यहाँ पे C की जगह A आ गया, तो UA इट इज अ टर्मिनेशन कोडॉन। तो यहाँ पे प्रोटीन जो फॉर्म होने वाला था वो नहीं हो पाया, उसका टर्मिनेशन हो गया, तो ये कहलाता है नॉनसेंस म्यूटेशन। और ये कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन भी तीन तरह का है, एक्सेप्टेबल, पार्शियली एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हंटिंगटन डिजीज जो है
CAG है ना, इट इज, इसकी रिपीटेशन होती है कोडाउन फॉर द ग्लूटामाइन, इट इज CAG, इट इज अ ट्रिपलेट फॉर द कोडिंग फॉर ग्लूटामाइन. mRNA is translated into the Huntington protein, which is abnormal glutamine repeats and aggregated proteins and peptides. Other triplet expectation disease. एडिशन ऑफ द बेस हमने देखा था. एडिशन, अगर हमने एक बेस ऐड कर दिया, यहाँ पे mRNA में एक बेस ऐड हो गया, तो ये पहले सेरीन 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 टायरोसिन है ना, ग्लाइसिन, इस तरह से कोड हो रहे हैं. तो जब हमने इस बेस को ऐड किया, ये सॉरी बी से शुरू करते हैं, UCACCU, यहाँ पे हमने एक बेस ऐड कर दिया, तो पहले क्या था, सेरीन प्रोलिन मिथ्योनिन एलेनिन था, इसमें बेस ऐड हो गया, तो फिर ये सेरीन सेरीन टायरोसिन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस, है ना. अब अगर हमने यहाँ पे एक रिमूव कर दिया, सी को रिमूव कर दिया, तो डिलीशन हो गया. तो यहाँ पे सेरीन सेरीन ल्यूसिन ट्रिप्लिन, तो डिलीशन ऑफ द बेस. तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है. फिर नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस. Thank you very much. Thank you so much.